So, hello everybody, welcome back to my channel. And yesterday was not good in terms of productivity. Like, I could study around 4 hours out of 6, so not great, not good. But yeah, I'll tell you about the other things. So, first is I read a article on Reddit, and like I was just casually browsing where I found out that it's that time of the year where you have to eventually switch into prelims preparation. So, for prelims, the most common and the most inevitable flaw which I found out is that the lack of practice. Like, I would say, like, I would compare it to JEE. Like, a JEE. In JEE, I used to just uh, skim through the theory and I used to practice as many numericals as I can, and that was the norm for everybody. Like, we were taught that you need to practice as much as you can. So here also I'll apply the same thing. I will practice, and for this I have found out one of the resource which is Forum Toolkit. So I'm not sure about it for all subjects, but I personally believe that it is good for polity because I have done a few questions from it. Then it's good for modern history, geography. Haven't tried the economy part yet, but uh, like economy, I would say the OG economy is like if you read Mrinal Sir's handout, he's the OG. Like I could say in my both of these attempts, I am an engineer. I have had zero background of economics. The last time I read economics was for my class 10th examinations. But because of reading Mrinal Sir's handouts, I could say that I could attempt around 90% of the economy questions. So, economy hands down, it's Mrinal Sir. Like this is just from Pillar's perspective. Like I'm not saying from the mains perspective. Mains is a totally different game, but here since we're talking about prelims, so prelims I would definitely go for Mrinal Sir's notes. But here coming back over here, quality हो गया, modern history, geography, कोर सब्जेक्ट इसमें तो कोई मतलब चांसेस नहीं रहते ना कि कोई बुक भी गलत प्रिंट कर ले इतना ज़्यादा. तो मैम हिस्ट्री के बाकी सब भी एंशंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर इसका भी इससे कर लूँगी. बचा साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, तो दे ऑल्सो हैव सम स्टैटिक. साइंस एंड टेक का थोड़ा स्टैटिक कम रहता है, बट इन्वायरमेंट में तो स्टैटिक भी रहता है बहुत सारा. जैसे इस बार आर्टिकल 6 आया था, तो इन्वायरमेंट का स्टैटिक अभी मतलब उसके लिए अब सोचा नहीं है, बट ये ठीक है. और आई हैव डिसाइडेड फाइनली दैट, नॉट फाइनली मतलब मैंने पहले भी डिसाइड किया था, बट अभी ये याद आया इसलिए लिख रही हूँ कि 22 दिसंबर से मुझे फॉर्मली एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है. एंड मेरा मेन मोटिव ये अटेम्प्ट करने का इसलिए है क्योंकि बाद में तो मतलब मिल जाते हैं वो, अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको पूरे पेपर्स मिल जाते हैं, बट वो एक क्या बोलते हैं डिसिप्लिन नहीं बन पाता है. इसलिए 7 AM वाला जो टेस्ट है, मुझे ये रूटीन बनाना है. इसलिए 2 दिसंबर में फोरम SFG लॉन्च होगा, मैं दूंगी ये. और लर्निंग्स में मैंने ये सीखा कि पहले मतलब मैं पूरा नहीं कर पा रही थी क्योंकि मतलब जैसे ही मैं इंस्टीट्यूशंस वाले पार्ट पे आई, लाइक countries and their relations मैंने पढ़ लिया, but when I was studying for India, US, India, Japan, like neighborhood part was very easy because I was more accustomed to it. There have been more news or there have been many controversies which I could associate with, but I could not actually form so much of linkages between India, Japan, India, US. I could because of the recent tariff war and all, but India, Japan, I was not able to form those linkages. So उसमें I felt a little
I would say challenging. I find it a little challenging, and right now I'm trying to complete all the institutions. So मैंने initially IR को 3 days दिए थे. Today is the 4th day, and I think I would need uh, मैं इस पूरे वीक IR को कंप्लीट करना चाहूँगी. लाइक आई डोंट वांट इट टू कि मैंने ऊपर ऊपर से बस पढ़ लिया फिर मुझे कुछ आ नहीं रहा है. तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये सब कंप्लीट करना है मुझे इस वीक में. until so I just relaxing the target a little. मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा target. ओके हाँ जी. तो मुझे एक वर्क कॉल आ गया था. एनीवेज, तो इसको मुझे संडे को कंप्लीट करना ही करना ही. किसी भी हालत में IR का मुझे संडे को पूरे PYQs पूरे तो नहीं हो पाएंगे बट मोस्ट वाले अप टू 2020 से 25 ये तो हो ही सकते हैं. तो आई डू दीज इकोनॉमी लेक्चर. लाइक इकोनॉमी आई हैव टू पेस अप. हाँ तो मतलब बता ही रही थी ना मैं, उतना अच्छा नहीं गया है मेरा अभी तक का. तो मुझे और तब रिलैक्स करके टारगेट. आई वाज लिटरली कल का दिन इट वाज नॉट वेरी हेक्टिक फॉर वर्क. कल का दिन वाज गुड बट देन टू आई वाज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट दैट वेल. आई थिंक B12 की टैबलेट कल नहीं खाई थी ना मैंने, इसलिए ऐसा होता है. मतलब इट्स जस्ट एन एनालॉजी. ऐसा मतलब एक दिन में से ऐसा इतनी डिफिशियंसी नहीं हो जाएगी बट फिर भी असर तो होता है. तो हाँ, आज के टारगेट्स तो आपको पता ही है. मुझे बैकलॉग कंप्लीट करना है. मुझे IR की थ्योरी कंप्लीट करनी है आज. फिर कल मैं IR का करंट अफेयर्स का अभी तक का जितना भी करंट अफेयर्स है आई विल वर्क ऑन दैट. एंड इकोनॉमी I have 7 lectures. I have finished one out of that 7. The major problem I am finding in economy is that also in managing both of these is that मुझे रिविजन का टाइम नहीं मिल पाता अगर मैं दोनों चीज़ को एक साथ करूँ, और उतने अच्छे लिंकेजेस नहीं फॉर्म हो पाते हैं. So that's why I am of the opinion that I would just complete IR right now. इसको I have to complete it क्योंकि it's a very pretty simple subject, pretty small. एक बार खत्म करके छोड़ दूंगी फिर उतना टेंशन नहीं होगा ना कि चलो GS2 में टॉप 4 सब्जेक्ट्स में से एक तो कंप्लीट हो गया ना. जब पॉलिटी बचा, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड IR. तो IR तो हो जाएगा. तो अब मेरे पास क्या बचा. पॉलिटी में बेसिक्स तो कवर्ड है लक्ष्मीकांत से बट लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ. एवरीबॉडी वुड हैव टोल्ड यू दैट. तो इसलिए मतलब पॉलिटी का मैंने ये सोच के रखा था कि क्योंकि मुझे प्रीलिम्स के लिए तो पॉलिटी पढ़ना ही है, तो मैं पहले लक्ष्मीकांत से पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको ऑगमेंट कर दूंगी अपने मेंस के सोर्स से. तो साइड बाय साइड प्रीलिम्स भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा फॉर पॉलिटी. एंड सोशल जस्टिस के मुझे नोट्स बनाने हैं. गवर्नेंस के मेरे नोट्स हैं, मुझे रिवाइज करने हैं गवर्नेंस को. मतलब आई हैव सीन द लेक्चर्स ऑल्सो. येस, दिस इज व्हाट everybody should talk about but it's not talked very often. How to manage lectures, then answer writing practice, then like laws or any other laws. How to manage all of these in one go, like how to manage everything subsequently. जैसे मैंने अभी एक लेक्चर अटेंड किया, ठीक है, उस लेक्चर की डायरेक्टली बात तो मैं आज राइटिंग प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे वो कंटेंट रिटेन भी तो करना पड़ेगा ना. एंड आई had just read it for the very first time. I also have watched the lectures but तो देखो एक लेक्चर अगर मैं उसको 2x पे भी देखूं तो मिनिमम मुझे 2 hours 2.5 hours तो लग ही जाते हैं ना. बिकॉज
थोड़ा तो पीछे भी करके देखना पड़ता है, कुछ कुछ समझ में नहीं आता है. So 2 hours for lectures, that's minimum. फिर 1 hour for reading, and then 1 hour for answer writing practice. This all sum ups to 4 hours per day per subject. ऐसे में ये एक अप्रोच हुआ. फर्स्ट अप्रोच हमारा था कि टेक वन सब्जेक्ट, उसका लेक्चर देखो, उसकी थ्योरी पढ़ो, then do the answer writing practice. So in this whole cycle it would take 4 to 6 hours on a minimum. Then हमारा सेकेंड अप्रोच हो सकता है वन सब्जेक्ट, लाइक 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली करो, उसमें मतलब दोनों के लेक्चर्स देखो और थ्योरी पढ़ो. तो ऐसे में भी टाइम तो मतलब चलो 5 आवर्स मान लो, इतना 5 आवर्स तो लग ही जाएंगे. दो ज़्यादा ही लगेंगे यार, 2 आवर्स के लेक्चर ही हो गए. 2 आवर्स लेक्चर्स, फिर उसका पढ़ोगे तो बिना पढ़े तो समझ में आना है ही नहीं. तो इट वुड बी 6 आवर्स. सो आई हैव टू डिसाइड विच अप्रोच टू फॉलो. ये तो उतना ज़्यादा फीजिबल नहीं लग रहा क्योंकि रिविजन का टाइम ही नहीं मिलता है. फिर ऐसे में ये मैंने करके देखा था, रिविजन का टाइम नहीं मिलता. इसमें इसे एक सब्जेक्ट करो तो थोड़ा कॉम्प्लिसेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं. दिस आई हैव टू फिगर आउट, दिस इज द प्रॉब्लम. सोचते हैं उसके बारे में, एंड कोई सोल्यूशन मिलेगा तो शेयर करते हो. एनीवेज, thank you so much for watching. Bye, and I hope you guys meet your targets. Okay, bye.